Hello all, I'm just admitting people. So I'm taking it from my home. So if there is any network issue also, don't worry, I'll reconnect with everyone. Long time I've seen you all. Just admitting everyone. Okay, I just uploaded this post a couple of hours back and the response is great. All right. We'll be starting with the session very quickly. Despite having such a boring face, I'm keeping my video on. You all can also keep your video on. I'm just admitting everyone. I see some people celebrating No Shave November now because I think they are having their attempt. Don't have time to go out. Okay. I'm not that great at operating Zoom. So if I'm committing a mistake or so, then let me know through messages. Right. So I understand that May 21 students would be over here. So it's very important that we start with the session ASAP. All right. If you all can keep your video on, it would be great. If it is going to use up my internet, then don't keep. Joking over. All right. So that's it. I'll start with the session now. It's a lot of waiting room people. Okay. So I'll come straight to the point. All right. So I've got some answer sheets with me over here, as you can see. And just a minute. Okay. All right. That's it. So latecomers not allowed now. Uh, till 5 minutes we allow it, no, in face to face also. Okay. So we are starting now. Just give me a chat confirmation. Can you hear my audio? All right. All right. Got it. Got it. Thank you. Okay. So we'll start with this now. So as you can see over here, just a minute.
Everyone, please mute yourself. If there is any doubt, I'll give you a time specifically when you can ask. Okay. So as we can see over here that I've got some answer sheet. Now for this student, I have a little bit of issue over here. If you see for this student, the total, I mean, of course, final say paper is divided into two parts, So there's MCQ of 30 marks, and then there is this theory of 70 marks. So as you can see for this student, total marks 70, and what we see is marks obtained around 28 or so. So I don't think that this student, of course, I'll not reveal the name. Maybe that student is also attending this. So I don't think that this student does not deserve to clear it. I think by looking at the paper that this student has lost some marks where the student should not have lost it. So that is what I believe. And that is mostly the case in audit paper. So this paper is of November 20, cycle 1. साइकिल 2 का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर सर्टिफाइड कॉपीज का तो बात ही नहीं आता है. सो नवंबर 2020 साइकिल 1 पेपर दिस इज, एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट फ्यू एरियाज. दिस स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 41 in total, 28 in the theory part, and 13 marks in MCQ. See, I believe that MCQ is something that अगर आपका थियरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको MCQ पे कोई डिफीट नहीं कर सकता. So students keep on asking me MCQ के लिए क्या करना है. जितना ICA का मटेरियल है उतना MCQs कर सकते हैं. Beyond a point of time आप MCQ के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते. So that is one thing that you should keep in your mind. तो मैं पहले यहाँ पे जो थियरी पार्ट है, the theory part, that I would like to highlight, that where the student has gone wrong. I am very happy with the presentation style of the student. You can see that the student is underlining everything, and ensuring that the examiner reads what he or she wants to show. So it's very good style of presentation. Handwriting is actually better than me, तो मैं क्या बोलूं. So the first thing first, आप देखोगे स्टूडेंट ने क्वेश्चन 1A से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. सो जब आप पेपर में जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 इज गोइंग टू बी कंपलसरी. सो इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 1 मोस्टली हमेशा स्टैंडर्ड से होता है. That is the trend that we have seen. And November 2020 cycle 1 जो हुआ, I think institute ने थोड़ा डिस्काउंट दिया स्टूडेंट्स को because of COVID or something. स्टूडेंट्स ने भी अच्छी डेयरिंग की जाने की. And if you see question 1A, इस कितना सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे 501 से क्वेश्चन है. मैंने जूम सेशन इसलिए रखा है बिकॉज मैं शॉर्ट में बताने नहीं चाहता था यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल सेशन पॉइंटिंग आउट एवरी सिंगल मिस्टेक. सो अगर आप देखोगे क्वेश्चन 1A में ऐसे 501 का क्वेश्चन है. आप चाहो तो ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ भी लो. आई विल रीड इट वेरी क्विकली. एक बच्चा जब क्वेश्चन देखता है तो उसे क्या फील होना चाहिए. सो लुक एट दिस. Moon Limited is a dealer in electronic appliances. Company has a centralized warehouse at the outskirts of Mumbai. Auditors of the company, look at this. Messrs. JK Associates normally attend the physical verification of stocks carried out by the management at the end of the financial year. Normally, अपना stock counting end of the financial year पे होता है. However, on account of certain disturbances in the region, physical inventory counting could not be carried out at the year end. The stock taking is decided to be done by management at some other date subsequently. अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है 501 का क्वेश्चन है. अगर एक बार भी पढ़ेगी तो पता चल जाता है. सेकेंड, 501 जब मैं पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट्स को मैंने इंस्टाग्राम में भी जो नोट शेयर किए, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट कि 501 में इन्वेंट्री में 3-4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक प्योर थियरी, तो सबसे पहले तो ऐसा माइंड मैप करना होता है. ओके, ये प्योर थियरी क्वेश्चन है. अच्छा, सेकेंड, वेरियस पॉसिबिलिटीज पे. अगर आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखोगे तो क्या हुआ है, ईयर एंड पे मैनेजमेंट ना बोल रहा है, कोई दूसरी डेट पे करना है, तो फिर अपना माइंड मैप. अच्छा, ईयर एंड पे नहीं, कोई दूसरी डेट पे करना है. Look at this, subsequently after a month. So let us say April end में वगैरह verification हो रहा है. So if verification is not done as on 31st March and verification happens as on 30th April, तो 30th April को जाके आप वहां पे डांडिया करने वाले हो? नहीं. What are you going to do on 30th April? जो आप 31st March को करने वाले थे वही आप 30th April को करोगे. Additionally आपको क्या करना है? Stock reconciliation.
इतना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मतलब जो प्रोसीजर्स मैं नॉर्मली करता हूँ, द प्रोसीजर्स व्हिच आई नॉर्मली डू on 31st March, that I'm going to do on 30th April plus reconciliation. This is going to be a detailed session, so only students who are patient can attend this. तो बच्चे के दिमाग में इतना क्लियरली आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने क्या किया है, 501 का रेफरेंस एकदम राइट तरीके से लिखा है, as you can see over here, 501 का रेफरेंस। Now many students ask me कि सर अगर हमने रेफरेंस राइट लिख दिया और मेरे आंसर में क्वालिटी नहीं है, if my reference is correct but my answer does not have quality, in that case, sir, will I get the marks only for giving the reference? No, you are at final CA. You are at final CA level. सिर्फ reference के marks नहीं मिलेंगे. If you are not quality in your answer, you will not get marks only for reference. Point number 1 to be noted. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चों ने, ये जो स्टूडेंट है उसको क्लिक हुआ है, थोड़ा थोड़ा क्लिक हुआ है कि हाँ जो नॉर्मली प्रोसीजर्स करनी है वो है प्लस रिकंसिलिएशन। बट देखो आप, without any order this student has written it. All right, so if that student is attending then I'm sorry. You can see over here, पहले तो look at this, टेस्ट काउंट करना है, फिर अचानक से रिकंसिलिएशन का पॉइंट आ गया, पहले सारी प्रोसीजर्स फिर रिकंसिलिएशन, ऐसा पॉइंट होना चाहिए। फिर देखो इवैल्यूएट द इंस्ट्रक्शंस, तो थोड़ा थोड़ा एग्जामिनर को भी पता चला है that the student को थोड़े पॉइंट्स क्लिक हो चुके हैं, and that is why if you see over here 2 marks have been given. Very simple. That is how the things are going over here. All right, so just a minute. Yes, so that is how things are going over here. All right, just a minute, Zoom is playing with me. इसलिए अगर आप देखोगे 1A में स्टूडेंट को मिले हैं 2 marks बिकॉज उसको क्लिक हुआ है बट देयर इज नो फ्लो इन द आंसर। क्लियरली जो पॉइंट्स होने चाहिए वेरिफिकेशन के वो पॉइंट्स नहीं है। मैं यही सेशन में ये भी प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव इन दिस सेशन दैट एग्जैक्ट बेयर लैंग्वेज ऑफ एसे रिक्वायर्ड नहीं है। इनफैक्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ आई विल प्रूव इट, बट एटलीस्ट थोड़ा रीजनेबली सिमिलर टू व्हाट इज द सजेस्टेड आंसर, reasonably similar to what is the suggested answer, and ensuring that your answer has a flow. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको माइंड में एक मैप क्रिएट करना है। इवन इफ 1 or 2 points are less, it is fine, but there has to be a flow. अगर आप देखोगे in the next question, question 1B that the student has done, again it is from standards. So as you can see over here, it is very clear that the question is from subsequent events, SA 560. I'll be little quick with this. इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। अब ये इंस्टीट्यूट की नई टेक्निक है। इन द ओल्ड सिलेबस दे यूज्ड टू बी वेरी क्लियर, इफ इट इज अ थियरी क्वेश्चन डायरेक्ट थियरी का 2-3 लाइन पूछ के बोलते थे एलाबोरेट। नाउ दे गिव अ बिग केस स्टडी, एंड देन दे विल टेल यू व्हाट दे वांट फ्रॉम हियर। तो एक बार ना जब आपके पास टाइम थोड़ा कम हो तो लास्ट की 3-4 लाइन पहले देख लो। एज द ऑडिटर ऑफ PQR Limited, what audit procedures would you perform to ensure that all subsequent events are considered so that financial statements for the year ended 31st March 2020 represent true and fair view? End of the session I will take your queries also, don't worry. Now the moment I see last 4 lines, समझो अगर क्वेश्चन की लास्ट 4 लाइंस में लिखा है कि एज एन ऑडिटर प्लीज कमेंट ऑन द अबव केस, तो फिर आपको केस स्टडी पूरा बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट अगर लास्ट 4 लाइंस में एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने पूछ लिया एक थियरी क्वेश्चन, SA 560 जो आपको पढ़ाया जाता है, इफ योर माय स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टॉट यू, तो SA 560 जो आपको पढ़ाया जाता है वहां पे क्लियरली मैं बोलता हूं कि एक थियरी क्वेश्चन उनका हॉट फेवरेट है। दे हैव अ हॉट फेवरेट थियरी क्वेश्चन दैट बॉस, as an auditor what procedures will you perform to ensure कि subsequent events are identified? मतलब डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ अप्रूवल तक ये जो बीच का पीरियड होता है उसके अंदर हाउ विल यू एंश्योर कि आप कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे ताकि आपको पता चल जाए कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 5 पॉइंट का थियरी आंसर है इसका, वेरी सिंपल। यू राइट दोस 5 पॉइंट्स, यू गेन द मार्क्स, दैट्स इट। इतना सिंपल है। तो अब देखते हैं कि वो बच्चे ने क्या किया है। देखो उसने रेफरेंस तो लिखा है, बट उसके साथ साथ अगर आप देखोगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स की पहले डेफिनेशन दे दी है,
वेरी गुड, यू गेट योर 1 मार्क ओवर देयर। मैं हमेशा कहता रहता हूँ पढ़ाते वक्त भी कि थोड़ा डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव्स अगर आप लिखो देन इट इज गुड। ऑलराइट, देन इफ यू सी, स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता चल चुका है, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। 560 में एक थियरी क्वेश्चन सर ने बोला था वहां से आया, एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी, ये जो स्टूडेंट है इसने बेयर एसे की लैंग्वेज में नहीं लिखा है, बट ब्रॉडली दिस स्टूडेंट रिमेंबर्स द टेक्निक टू बी द पॉइंट्स टू बी रिटन। तो आप देखो धड़ाधड़ मार्क्स दिए एग्जामिनर ने। लुक एट दिस, इंक्वायर विद द मैनेजमेंट as to any adjusting subsequent events became known to them। अगर आप देखोगे if that student is attending, I am really really sorry, ये अगर आप देखोगे एकदम सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। The real point is in conducting inquiries of the management and where appropriate those charged with governance to ensure that events occurring between the date of financial statements and the date of auditor's report have been identified, adjusted or disclosed in the financial statements as per AFRF। ये पॉइंट है, लेकिन देखो इसने इंक्वायर विद द मैनेजमेंट की टेक्निक सही लिखी, एग्जामिनर हैज गिवन 1 मार्क ओवर हियर। देन नेक्स्ट, कौन सी अकाउंटिंग प्रोसीजर मैनेजमेंट अडॉप्ट किया, आस्क अबाउट दैट, 1 मार्क, फटाफट मार्क्स मिल रहे हैं। रीड मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, नो लुक एट दिस, रीड मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्लियर पॉइंट है। बोर्ड मीटिंग जो आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, वहां की बोर्ड मीटिंग से पता चल जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो आप देखो स्टूडेंट इज फटाफट पॉइंटिंग आउट द पॉइंट्स। तो यहाँ पे उसको 3 मार्क मिल गए, यहाँ का 1 मार्क मिल गया। अब स्टूडेंट ने गड़बड़ कहाँ पे की? आई एम वेरी हैप्पी कि स्टूडेंट को याद आया कि इट इज बेटर टू ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। बट मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के भी लेक्चर में ये बोलता हूँ दैट हर एक ऐसे जहां पे ये पॉइंट है कि आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यू शुड ऑल्सो नो दैट रिटन रिप्रेजेंटेशन किसके लिए रिक्वायर्ड है। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना है, लेकिन क्या लिखवाना है, क्या लिखवाना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या लिखवाना है। तो हमें ये लिखवाना है दैट यू हैव आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड यू हैव एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब देखो स्टूडेंट ने एकदम ही सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, तो सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखने का मार्क्स नहीं मिलेगा। I have said this in my lectures also, if you have the recordings you can see, you have to always write that written representation kiske liye required. Am I clear with this? Okay, so that is one point that needs to be addressed over here। और एक point बच्चा लिखना भूल गया है कि suppose अगर 31st March 2020 is the date, तो April May naturally that comes to the first quarter of the next year, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर की भी इवेंट्स देख लेनी चाहिए। तो वहां पे बच्चा वो पॉइंट भूल गया है, अदरवाइज स्टूडेंट वुड हैव स्कोर्ड आउट ऑफ मार्क्स इवन विथ नॉट हैविंग देयर एसे लैंग्वेज। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि 100% बेयर एसे लैंग्वेज चाहिए, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द फ्लो एंड द मेन पॉइंट्स, बट बेयर एसे लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फुल आंसर। लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट। Okay. So is there any audio issue or so? I think. No, sir, some audio issue. Let me allow it to be stabilized. अभी आ रहा है ऑडियो? हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ, कोई एक जन कोऑर्डिनेट करना, कुशल यू कोऑर्डिनेट। Okay, sir. ठीक है। So as we can see over here, this is the mistake that student has committed where the student lost 1 mark, वरना तो out of मिलना था student। All right. So आगे बढ़ते हैं। Question 1C. This question, okay, lot of mute करो भाई। This question 1C is purely on, just a minute, someone raised a hand. Who is that? Can you raise it again, please? मैं आपको डाउट सॉल्विंग का एक टाइम दूंगा बिकॉज यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट में आए हुए हैं। सो अगर आपको मेरा ऑडियो नहीं समझ में आता या मेरा वीडियो स्टॉप हो जाता है, इन दैट केस यू प्लीज ब्लॉक मी। वरना यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है लाइब्रेरी का टाइम वगैरह एडजस्ट करके आए होंगे, सो आई विल क्विकली गिव देम अ ब्रीफ ऑफ द पेपर। So students who are raising hands, आप अपने डाउट थोड़ा लिख के रखो। At the end of the session, I will for sure give you the chance to ask all the doubts that you want to ask. Okay. So if you see over here that in question 1C,
It is purely a question on annual report, as we can see over here. अब जैसे annual report का question है, बहुत ही clear question है कि look at this. If you can just read a few lines. The audit team has completed the audit and is in the process of preparing audit report. Management of the company has also prepared draft annual report. Audit in charge was going through the draft annual report and observed that company has included an item in its annual report indicating downward trend in market price of key commodities as compared to previous. However, the actual profit margin of the company as reported in the financial statements has gone in the reverse direction. Audit manager discussed this issue with the partner of the firm, जिसने रिप्लाई में कहा कि ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है कि वो एनुअल रिपोर्ट की करेक्टनेस देखे. You know, now यही same examples I have given in SS 720, almost the same examples. मैंने GP ratio का example लिया था. So something which is there in the annual report, if it is clearly in contradiction with what has been reported in the financial statements, चलो annual report हमारी audit की responsibility नहीं है, but financial statements तो है. So उसका पूरा chart बना के दिया था what an auditor needs to do in that case. तो अभी देखो, do you think that the partner is correct in his approach? Discuss with reference to relevant. Just a minute. Sir, again audio issue. Yeah. I will hold. Okay. Discuss with reference to relevant essay the auditor's duties with regard to this reporting. तो बहुत clear cut essay 720 में से question है. And if you see the student over here, 720 सिर्फ 720 आइडेंटिफाई नहीं किया है, उसने वो लिखा भी है कि उसका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है. तो लुक एट दिस, what needs to be done in this situation, ऑडिटर को क्या क्या डिस्कस करना है in this situation. Look at this. So all that is given over here कि ऑडिटर की क्या ड्यूटी है with respect to annual report. Of course he is not there to give assurance on annual report, but is there to give assurance on the financial statements. तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और ड्यूटीज है वो आपको लिख के इसमें खत्म कर देना है. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1C में the student has been given 3 marks out of 5 क्योंकि थोड़ा unorganized आंसर है इसलिए. ठीक है. So that is why you see over here what is happening on this. Okay, just a minute. हाँ, ये क्रॉस मैं नहीं ला रहा हूँ आपको, ऐसा वो ये क्रॉस दिख रहा है क्या, कोई ला रहा है बीच में? हाँ सर, वो सर किसी ने शायद ड्रॉ किया हुआ है. हाँ. अच्छा, तो मैंने क्या उतने सिक्योरिटी इश्यूज इसमें रखे नहीं है इसलिए. ऑल राइट, मुझे लगा सब जेन्युइन लोग ही आएंगे. So as you can see over here, अरे ये कौन कर रहा है, इसको कैसे स्टॉप करते हैं? हो गया सर ऊपर ऑप्शन होगा. हाँ हो गया. थैंक यू सो मच. सो एज यू कैन सी बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स स्कोर किए हैं बिकॉज स्टूडेंट कंप्लीटली ऑफ ट्रैक चला गया. वहां पे थोड़ा रिकलेक्ट किया, फ्लो नहीं आया. 1B में आप देखोगे उसको क्लियरली याद आ गया क्या है, बेयर एसे लैंग्वेज नहीं आती थी बट स्टिल 4 on 5. And 1C में if you can see over here in 1C, 3 marks because little bit unorganized answer. I will stop. मुझे दिख रहा है ऑडियो इशू. Okay, so that is with respect to question 1. अब ये 3 में बच्चे ने बहुत सिली मिस्टेक की है क्वेश्चन 3 में, which I would like to show. उसने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया है. तो क्वेश्चन 3A, अब आप खुद ही एक बार क्वेश्चन पढ़ लो यार. क्वेश्चन 3A, इन द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट ऑफ KS बैंक लिमिटेड. इसमें क्वेश्चन का ही गेम है पूरा. यू ऑब्जर्व दैट सम बोरोअर अकाउंट्स हैव बीन रेगुलराइज्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट बाय पेमेंट ऑफ ओवरड्यू अमाउंट. You observe that. Narrate the audit procedures to be carried out with special focus on classification of advances and provisioning for non-performing asset of the branch. अब मैंने यही नहीं, मेरे पास अराउंड मोर देन 50+ सर्टिफाइड कॉपीज आई है. फॉर क्वेश्चन 3A मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट्स ने लास्ट 2 लाइंस देखी, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एंड प्रोविजनिंग फॉर NPA. तो स्टूडेंट एकदम खुश हो गया, वाओ ऑडिट ऑफ बैंक से क्वेश्चन आया है. और NPA वाला पार्ट तो मोस्टली सबको आता रहता है. बट स्टूडेंट ने ये नहीं देखा दैट क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग कि एज एन ऑडिटर आप NPA को कैसे चेक करोगे. तो आपको सारे NPA के पॉइंट्स लिखने थे, बट
जैसे कि ऑडिटर चेक कर रहा है, आपको एग्जामिनर को एनपीए के नॉर्म्स नहीं समझाने, यू आर नॉट सपोज्ड टू टीच द एग्जामिनर व्हाट आर एनपीए नॉर्म्स, सो यू हैव टू राइट एज इफ ऑडिटर इज चेकिंग एनपीए नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो व्हाट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फिर अगर आप लिखते हो क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, तो हर एक स्टेटमेंट स्टार्ट कैसे होना चाहिए, ऑडिटर शुड चेक वेदर, ऑडिटर शुड चेक वेदर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन 3A ओवर हियर, तो स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत इधर एनपीए के बारे में लिखा है 0, उसने ये भी लिखा है तो अराउंड 1 मार्क मिला उसको, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट इज नॉट राइटिंग एनीथिंग ऑन हाउ this NPA exactly needs to be checked। NPA का ही पॉइंट्स लिखना है थियरी, लेकिन जैसे कि हम आर्टिकलशिप में करते हैं ना, चेक वेदर चेक वेदर चेक वेदर कंटिन्यूअसली हर एक स्टेटमेंट के पहले आना चाहिए, इतना सिंपल था। आई हैव अनदर फोटो अनदर शीट which I will try to show over here। हाँ, ये देखो, ये 3A जो ये स्टूडेंट ने लिखा है, इफ यू सी, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। दिख रहा है अभी? नहीं सर। Oh, I don't know, but I will just say it orally। I don't know why it is not showing। उसने ऑडिटर शुड चेक वेदर करके लिखा है, इन दैट केस दैट स्टूडेंट इज गेटिंग द मार्क्स, ठीक है, तो वहां पे 2 मार्क्स उसको मिला है। सो दैट इज हाउ थिंग्स नीड टू बी डन। दैट वाज सिंपल मैसेज दैट आई वांट टू गिव। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, एनपीए का तो सबको आता रहता है नॉर्म्स, उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर क्या है सिर्फ उतना पूछा था, तो एटलीस्ट यू नीड टू सेटिस्फाई देम अकॉर्डिंगली। ओके, देन यहाँ पे तो मैं काफी स्टूडेंट से डिसअपॉइंट हुआ हूँ इन क्वेश्चन 3B। देखो 3B में द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स में जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती है, तो ऑडिटर नीड्स टू कम्युनिकेट दैट विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये अपना ऐसे 265 है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। एक तो वैसे भी बच्चों को ना 260 265 ये सब थोड़ा कम अच्छा लगता है, उनके कुछ फेवरेट या नॉन फेवरेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो ओवर हियर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एक ऑडिटर किसे कहता है? फॉर एग्जांपल डेली बैंक रिकंसिलिएशन होता है और उसमें एक दिन रिकंसिलिएशन नहीं हुआ, तो क्या हम उसे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहते हैं व्हिच नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट, दोज चार्ज गवर्नेंस? नो। हाँ, लेकिन कैश के मेंटेनेंस में अगर वीकनेसेस है, बड़े बड़े एस्टिमेट्स जो कैलकुलेट हो रहे हैं उसमें अगर वीकनेसेस है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। मेकर चेकअप प्रोसेसेस नहीं है। ये क्वेश्चन आज तक लाइफ में पूछा नहीं गया था, फर्स्ट टाइम पूछा गया है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा, इसलिए मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है दैट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के एग्जांपल्स बताइए। तो क्लियर क्वेश्चन वाज फ्रॉम देयर। हाउएवर स्टूडेंट्स हैव जस्ट गॉन ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। वो क्या ऐसे 265 में बच्चों को सिर्फ लेटर ऑफ वीकनेस का एक पॉइंट आता रहता है, तो वही बार बार लिखते हैं, तो मोस्टली सब स्टूडेंट्स आउट ऑफ ट्रैक गए हैं ये क्वेश्चन के अंदर। बट ये जो स्टूडेंट है इसने क्या किया है, कॉमन सेंस से एफर्ट लिया, एटलीस्ट उसने क्वेश्चन को समझा है दैट क्वेश्चन इज अबाउट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, उसके एग्जांपल्स देने हैं और उसके लिए उसने एफर्ट लिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने एग्जांपल्स देने की ट्राई की। ये एग्जांपल्स आर नोवेयर नियर टू द मॉड्यूल लैंग्वेज, ये एग्जांपल्स आर नोवेयर नियर टू द मॉड्यूल लैंग्वेज, लेकिन उसने कॉमन सेंस से एग्जांपल्स देने की ट्राई की है। एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी फॉर दैट कॉमन सेंस without any bare essay language, without reference to suggested answer, for that common sense if you see student has been awarded 2 marks over here। मैं अगर यहाँ पे एग्जामिनर होता तो शायद 1.5 मार्क देता। स्टूडेंट का लैंग्वेज बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, लेकिन कॉमन सेंस के बेसिस पे उसको 2 मार्क्स मिले हैं कि एटलीस्ट उसने क्वेश्चन को समझकर लिखने की ट्राई की है। एज फाइनल सीए स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू सी क्वेश्चन, चलो अगर आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन के बारे में मैंने पढ़ाई नहीं की है, बट यू आर फाइनल सीए स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को देख के थोड़ा एस्टिमेट तो लगा सकते हो कि ब्रॉडली आंसर क्या होना चाहिए। फिर भले आप कम पॉइंट्स लिखो लेकिन रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो। इफ यू डू दैट यू विल एटलीस्ट स्कोर 1.5-2 मार्क्स। देखो आपके पेपर में 50% क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जहां पे यू आर मोर देन कॉन्फिडेंट, एटलीस्ट 50%। बैलेंस 50% में यू हैव टू एंश्योर कि आपको 0 ना मिले।
So for that you have to at least write a little bit with your common sense. That is what I want. तो 3B में वहां पे बच्चा गया है गलत, और ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था स्टूडेंट्स को कि यूडिन की पढ़ाई करो, यूडिन की पढ़ाई करो। मैंने काफी बार मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर किया था कि यूडिन के एफएक्यूज पढ़ने चाहिए। सो इफ देयर आर स्टूडेंट्स ओवर हियर जिन्होंने अभी तक यूडिन के एफएक्यूज नहीं पढ़े हैं, ऑन ICAI वेबसाइट, on ICAI website there are good UDIN FAQs available, so ensure that you please do it properly, right? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूडिन का क्वेश्चन है, यूडिन का रिपोर्टिंग किया, आई मीन यूडिन का हिसाब से साइनिंग हुआ नहीं है, so it is very clear that the chartered accountant is not going as per the provisions, so that is what we're supposed to do. but यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ एफर्ट ही नहीं लिया है. So you see over here, there is no effort that has been taken to write proper answer. जैसे स्टूडेंट ने कॉमन सेंस से यहाँ पे आंसर लिखा, अगर यहाँ पे भी डर ना, अगर स्टूडेंट डरा नहीं होता और कॉमन सेंस से लिखा होता, तो यूडिन का सबको पता है that यूडिन is mandatory now. And accordingly, if the answer would have been written, then student would have scored marks. So that is why student has messed up over here. आप पेपर में एक चीज समझ लो बॉस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंपनी ऑडिट. लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस. प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंपनी ऑडिट के जितने भी टोटल क्वेश्चंस होते हैं, you have to ensure that you score full marks over there or near to full marks, because ये दो टॉपिक आपके फेवरेट होते हैं. स्टैंडर्ड्स एंड अदर चैप्टर्स में अगर आप एवरेज या अबव एवरेज भी स्कोर करते हो, then it is okay. So that is how your preparation should be. All right. Okay. So now we go ahead. I'll be a little more quicker with this. So if you see, student has now gone on to question 4. So we'll also go to question 4 over here. आप स्टूडेंट के एंगल से मैं क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूं ताकि पता चले दैट वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग ओवर हियर. अब क्वेश्चन 4A में अगेन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा है दैट PQ Limited इज अ लिस्टेड एंटिटी. कंपनी हैज अपॉइंटेड CA Jazz as CFO ऑफ द कंपनी. पता नहीं कौन सा CA Jazz नाम रखता है. CA Jazz is concerned about compliance with provisions of laws and regulations. So you should always be concerned about compliance with laws and in-laws in your life that determine the reported amounts and disclosures in the financial statements. Accordingly, CA Jazz wants to implement such policies and procedures that can assist him in prevention and detection of non-compliance with laws and regulations. Help CA Jazz by citing examples. देखो बॉस, एक तो एग्जांपल्स वाला जहां पे भी क्वेश्चन होता है ना, यू हैव टू एंश्योर दैट आप कॉमन सेंस के उसके एग्जांपल लिखो. अब लेटर से आप खुद को CA Jazz की पोजीशन में डाल दो. आप CA Jazz हो, आप एक कंपनी के CFO अपॉइंट हुए हो, आपको एंश्योर करना है कि कंपनी एक लिस्टेड एंटिटी है, तो आपको एंश्योर करना है दैट यू इंप्लीमेंट सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिससे कि पूरे कंपनी में लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस रहे. तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू विल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ड्यूटीज को डिवाइड करोगे. क्या करोगे? क्या और यू विल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप ड्यूटीज को डिवाइड करोगे. आप नॉलेज रिसोर्स अपडेट करोगे कि लॉज एंड रेगुलेशंस कितना एप्लीकेबल है एंटिटी को. आप पास्ट हिस्ट्री देखोगे कहां पे गलती हुई है कंपनी से, उसके हिसाब से आप पॉलिसीज सजेस्ट करोगे. आप इंश्योर करोगे कि कंपनी का एक लीगल डिपार्टमेंट हो बिकॉज लिस्टेड एंटिटी. तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विद कॉमन सेंस. दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू ओवर हियर. ऐसे 250 का क्वेश्चन है ये, पर ये ऑडिटर के एंगल से पूछा ही नहीं है, मैनेजमेंट के एंगल से पूछा है कि नॉर्मली एक मैनेजमेंट को कंप्लायंस अगर करना है तो उसको क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए. अगर आप देखोगे स्टूडेंट वापस यहाँ पे थोड़ा डर गया है, बिकॉज फाइनल सीए स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है आजकल कि जब वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम व्हाट आई हैव स्टडीड, ये कुछ अलग है, तो बच्चे का 50 to 60% कॉन्फिडेंस उधर ही खत्म हो जाता है. दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. आज तक मुझे बताओ लाइफ में ऐसी कितने क्वेश्चंस आपके सामने आए जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, स्टिल यू हैव मैनेज्ड अप टिल हियर ना. तो जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो और अगर आपकी स्टडीज से नहीं है, इट इज ओके. कॉमन सेंस से लिखने की ट्राई करो. ये देखो, अगर बच्चे ने इधर लिखने की ट्राई की है, ही कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ही कैन असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई एम ट्राइंग टू जूम दिस. ओके, देखो बच्चे ने लिखने की ट्राई किया, एग्जामिनर ने फट से वो देखा एंड हैज बीन गिवन 1 मार्क ओवर हियर. एक मैनेजमेंट दूसरा क्या करता है यार पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की?
सो दैट इज वाई अगर आप देखो बाद में बच्चे ने कुछ हिम्मत हार गया, पता नहीं क्या, एकदम कैजुअली आंसर लिखने की ट्राई की, तो यहाँ पे 1 मार्क लेके खत्म होंगे। आप एटलीस्ट पूरा जस्टिफिकेशन तो करो आंसर का। ओके, इफ इट इज नॉट फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड, ऐसा आपको लगता है, बट आप कॉमन सेंस से लिखो, यू विल गेट द मार्क्स। देखो उसको मार्क्स मिल रहे हैं, द स्टूडेंट वाज नॉट रेडी फॉर द आंसर, स्टिल स्कोरिंग द मार्क्स। ओके, देन वी गो अहेड। क्वेश्चन 4B, अगेन इट्स वेरी सिंपल कि बॉस, आप पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हो, आपको एंश्योर करना है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप ऑडिट कर रहे हो, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सब्सिडरी, एसोसिएट्स, ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड हुए कि नहीं। अब बताओ, एज एन ऑडिटर जब आपको ये एंश्योर करना होता है कि सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, या जितने भी कंपोनेंट्स इंक्लूड होने चाहिए थे इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो इंक्लूड हुए हैं कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या डेटा देखते हो। यू विल सी प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप रिलेटेड पार्टीज का रजिस्टर देखोगे, आप कंपनी का इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर देखोगे, आप अदर ऑडिटर्स से कोऑर्डिनेट करोगे, कंपनी के जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसको आप देखोगे, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को आप देखोगे। व्हाट एल्स यू आर गोइंग टू डू। So it was again based upon common sense that student was supposed to write. काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टूडेंट को डायरेक्टली वहां से ना मिले कि उन्होंने पढ़ाई की है, बट आपको ऑन द स्पॉट उसके आंसर लिखने थे। इसलिए अगर आप देखोगे स्टूडेंट ने जहां जहां ट्राई किया, इंक्वायर विद द मैनेजमेंट, नोट्स ऑफ रिलेटेड पार्टी, अगेन स्टूडेंट थोड़ा हड़बड़ा गया है बट ट्राई कर रहा है। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखो, और ये देखो, ये जैसे सब्जी खरीद रहा है वैसे लैंग्वेज लिखी है, एनी कंपोनेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे नहीं होता है ना, एनी कंपोनेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या, अमेजोन से ऑर्डर करते क्या कंपोनेंट। सो थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट, चेंज इन द इन्वेस्टमेंट पैटर्न, चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा लिखते तो और मार्क्स मिलते, बट स्टूडेंट हैज बीन गिवन 2 मार्क्स ओवर ईयर। तो इफ यू सी, जो जो क्वेश्चन में स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, वहां पे भी कुछ कुछ मार्क्स निकाल रहा है बेस्ड अपॉन इट्स कॉमन सेंस। दैट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट। पर स्टूडेंट ने थोड़ी पढ़ाई कम की है यहाँ पे इन अदर चैप्टर्स व्हिच आई वांट टू टॉक। मैं एंड ऑफ द सेशन पे बहुत कुछ बोलने वाला हूँ उसके ऊपर। ऑलराइट, एंड देन अगेन इफ यू सी, ये देखो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का थोड़ा बुरा लगा। तारो का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इफ यू सी ओवर हियर, कितना स्कोर किया स्टूडेंट ने ये कारो के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स। ये आप क्राइम कमिट कर रहे हो इन कंपनी ऑडिट एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इफ यू आर स्कोरिंग लेस मार्क्स, यू आर कमिटिंग अ क्राइम। सिंपल रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूछी थी। एक तो क्लॉज 13 जो लिखा है, ये 13 ऐसे नहीं लिखते कारों में, कितनी बार कहा है छोटा रोमन होना चाहिए। फिर क्लॉज 13 का पूरा स्टेटमेंट भी सही सही नहीं लिखा है। देखो स्टूडेंट ना अभी तक कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस फेस कर चुका है। आप स्टूडेंट की मेंटल कैपेसिटी सोचो व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। अब तक उसने कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लिए जो उसने पढ़ाई नहीं किए थे, तो वो डर गया है। अब डर में कैसी मिस्टेक्स होती है देखो, सेक्शन 177 एंड सेक्शन 188 ऑफ विच एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। हाँ, कंपनीज एक्ट तो लिख मेरे भाई, बेसिक मिस्टेक्स ऐसी क्यों कमिट कर रहे हो आप। फिर देखो आपने इन द गिवन केस लिखा है तो उसका 1 मार्क है, रिपोर्टिंग लैंग्वेज का 1 मार्क दे दिया जहां पे आपको 2 मार्क्स स्कोर करना चाहिए था। तो रिपोर्टिंग लैंग्वेज कारो की आपको एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी, मार्क माय वर्ड्स। रिपोर्टिंग लैंग्वेज कारो वी विल नीड वर्ड टू वर्ड, एक दो वर्ड यहाँ वहां ठीक है, अदरवाइज कारो का रिपोर्टिंग लैंग्वेज विल नीड वर्ड टू वर्ड, ठीक है, एंड इट हैज टू बी रिटन नाइसली प्रॉपरली एंड देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ पे 2 मार्क देके छोड़ दिया। क्या पता फॉर दीज 2 मार्क्स द स्टूडेंट वुड हैव लॉस्ट द अटेम्प्ट। सो आप ऐसा कैजुअल मत हो जाओ। अगर आपके कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस गए हैं जहां पे लेटर से आप थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो आप कारोबारों में मस्ती नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब ये हुआ है कि ये जो स्टूडेंट का आंसर शीट है उसमें कुछ कुछ स्कैन ठीक से नहीं हुआ है, तो आई एम गोइंग टू टेक अप अनदर आंसर शीट ऑफ अ डिफरेंट स्टूडेंट जिसका भी कुछ 1-2 मार्क्स से ही तकलीफ हुआ है। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन 5A। आई नो एट फाइनेंशियल लेवल जो बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं वो यही है। प्रोफेशनल एथिक्स उनका अच्छा प्रिपेयर्ड होता है, दे आर इन लव विद प्रोफेशनल एथिक्स। शायद वैलेंटाइंस डे पे दे विल प्रपोज प्रोफेशनल एथिक्स बट नॉट एनीवन एल्स। कंपनी ऑडिट दे आर गुड, वेरी गुड। स्टैंडर्ड्स में दे आर अबव एवरेज, पर अपने जो बैलेंस चैप्टर्स है उसमें ताता थैया है स्टूडेंट्स का। ऑडिट ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनबीएफसी, इडली वड़ा, मेंदू वड़ा, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट।
ये सब टॉपिक्स में से मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर लीविंग मोर देन 50% टॉपिक्स इन ऑप्शन। अरे मेरे भाई या बहन, अगर आपको जो पार्ट 4 है ऑडिट का, ऑडिट ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, पीएसयू, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, ये सब टॉपिक्स में अगर आपको अच्छे नहीं लगते वो टॉपिक्स, एटलीस्ट उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस या टैक्समैन पब्लिकेशन का जो स्कैनर है, एटलीस्ट उतना तो खत्म कर दो। डू नॉट लीव थिंग्स इन ऑप्शन। अब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैनेजमेंट ऑडिट का, एज यू कैन सी ओवर हियर, मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन। मैनेजमेंट ऑडिट में कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं। ये क्वेश्चन पिछले 10 अटेम्प्ट या 12 अटेम्प्ट में एटलीस्ट मोर देन 4 या 5 टाइम्स आया है। अब अगर ऐसी प्रिपरेशन भी करके नहीं जाओगे आप, फिर आप रोगे कि मैं फेल हो गया, कैसे चलेगा? लुक एट दिस स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 है, लुक एट दिस, 0 0 0। यहाँ पे ये जो अपनी स्टूडेंट है, इसने थोड़ी ट्राई की है लिखने की, भले उसका क्लियर पूरा आंसर शीट नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट देखो ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच, एटलीस्ट फर्स्ट लाइन तो दिख रहा है, राइट? ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है, सीधा एग्जामिनर ने टिक करके 1 मार्क दे दिया, बात खत्म। सो यू हैव टू एंश्योर कि आप उसमें कुछ तो मार्क्स लेके आओ। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट ही पढ़ के जाना है। देखो ये बच्चे का यहाँ पे 0 है, क्या पता ये 2 मार्क्स की वजह से उसका अटेम्प्ट गया हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दीस एरियाज। देन ये ऑडिट कमिटी का जो टॉपिक है वो आपको लॉ सब्जेक्ट से अच्छे से पढ़ना है। आई होप दैट इन योर लॉ सब्जेक्ट आप ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 एंड सेबी एलओडीआर, आई होप यू आर डूइंग दिस प्रॉपरली। ऑडिट कमिटी के टॉपिक में से क्वेश्चन वंस इन एवरी 2 अटेम्प्ट आते ही आते हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट। सो क्वेश्चन 1B इज फ्रॉम ऑडिट कमिटी का टॉपिक। In fact, currently in December, I had also shot some videos on audit committee, which I think JKSC students may have it. So if you see over here, audit committee का बहुत ही clear question है कि audit committee में जो nomination and remuneration committee होती है, उसके क्या-क्या constitution, I mean, what is the composition that has been asked. You write it, you get your marks. But yeah, if you see, students over here are not that prepared. आप ये बच्ची को देखो, not prepared. Not prepared, look at this. थोड़ा उसने ट्राई किया, देखो थोड़ा ट्राई किया तो 1 मार्क मिल गया। सो दैट इज द प्रॉब्लम। या आप ये स्टूडेंट को देखो, थोड़ा बहुत उसको याद आ रहा है ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी के बारे में, एग्जामिनर्स मार्क्स काट रहे हैं ऐसा नहीं है। लुक एट दिस, कुछ यहाँ वहां के पॉइंट्स याद आ रहे हैं, फिर भी लुक एट दिस, 1 + 1 2 मार्क्स। सोचो अगर थोड़ा और अच्छे से लिखा ऑडिट कमिटी का, इट इज ग्रेट। ऑडिट कमिटी टॉपिक यू कैनॉट टेक इट लाइटली। I have said this in my videos also. आपको लॉ सब्जेक्ट सेक्शन 177 एंड सेबी एलओडीआर से उसको ठीक से प्रिपेयर करना है। वंस इन एवरी 2 अटेम्प्ट या काफी बार बैक टू बैक अटेम्प्ट में भी उसके क्वेश्चन आते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट। ओके, सो ऑडिट कमिटी डू नॉट टेक इट लाइटली। ऑलराइट, देन वी सी ओवर हियर क्वेश्चन 5C। अगेन इट इज अ प्योर क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स। भले ये स्टूडेंट का पूरा आंसर शीट नहीं दिख रहा है बिकॉज इसका स्कैन सही नहीं है, बट इफ यू सी प्रोफेशनल एथिक्स में अगेन 1 1 1 3 मार्क्स दिस स्टूडेंट हैज स्कोर्ड। चलो अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट दिस स्टूडेंट हैज डन। 5C, लुक एट दिस, रेफरेंस ओके, बट रेफरेंस लिख के फिर उसको ठीक से अच्छे से लिखा नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स का रेफरेंसेस और क्लॉज का लैंग्वेज सही होना चाहिए। प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दैट। And if you see, the marks have been given over here, but again I am not happy कि उसको 2 ही मार्क्स मिले। प्रोफेशनल एथिक्स वेबसाइट का सिंपल क्वेश्चन था, प्रोफेशनल एथिक्स, यू शुड हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स। आप प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट में अगर मार्क्स लूज करते हो, इन दैट केस इट इज नॉट गुड एट ऑल। लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट। ओके, सो दैट इज 1 पॉइंट। वी हैव रीच्ड टिल क्वेश्चन नंबर 4, डोंट वरी। आपका आई थिंक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, sorry, मैंने 5 is done. Okay, 5 we are done with this now. All right, so I don't see any problem over here. Question 6, we are in the last question. आपका डाउट सॉल्विंग सेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी। यस, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, इन दैट केस क्वेश्चन 6A को देख के मुझे थोड़ा डर लगेगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 6A में थोड़ा पब्लिक डिपॉजिट्स को लेके था एनबीएफसी का। सो दैट एरिया मैंने रिसेंटली कुछ वीडियो शूट किए थे फॉर जेकेएससी स्टूडेंट्स, वहां पे मैंने ये पब्लिक डिपॉजिट्स का एरिया कवर करने की ट्राई की है।
So I can understand that question 6A was little difficult. देखो पूरे पेपर में एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन अब तक क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक we did not see a lot of issues over here. We are going as per the student, how the student has attempted over here. All right. So let us see where the student has gone after this question. All right. Question 6 mostly काफी students ने attempt नहीं किया था, थोड़ा difficult था question 6. Is there an audio issue now? Just a minute, I'm waiting for this to be stabilized. Is it stabilized now? Yes, sir. Thank you. Okay. अब देखते हैं स्टूडेंट ने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया है. यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2 पहले क्लियर कर देता हूँ बिकॉज स्टूडेंट का चेकिंग देखने के लिए आए हो आप. आई नो दैट, सो वी विल जस्ट डू दैट वेरी क्विकली. आफ्टर दैट आई विल टेक अप ऑल योर क्वेरीज. अगर प्रिपरेशन को लेके भी कुछ क्वेरीज है, विल टेक इट अप, डोंट वरी. ओके, सो क्वेश्चन 2A. Mr. X, while conducting audit of PQR Limited, comes across certain transactions which according to him are significant transactions with related parties. अब ये देख के बच्चा खुश हो जाता है, चलो रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है, ऐसे 550. आई डोंट नो कितने बच्चे खुश होते हैं. एंड आइडेंटिफाइड टू बी आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. अब जब भी आप कोई ऐसे पढ़ो, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ थियरी मत ऐसा पढ़ते रहो. देखो कि ये ऐसे में से कितने क्वेश्चंस आएंगे. फॉर माय स्टूडेंट्स मैंने उनको मार्किंग देके रखे कि हर एक ऐसे से कितने क्वेश्चंस पॉसिबल. Guide Mr. X with examples of such transactions and to understand the nature of significant transactions outside the entity's normal course of business. I think this is the third or fourth question जहां पे और आपसे examples मांग रहे हैं. Whenever they ask examples means they want to test you and your knowledge. Examples of which transactions? Significant transactions. और ऐसे कौन से transaction होते हैं जहां पे आपको लगता है कि abnormal transaction है, outside the normal course of business. हाँ, जहाँ पे मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा हो, जहाँ पे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उससे एकदम ही यूनिक ट्रांजैक्शन हो, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन हो, या जो ट्रांजैक्शन को हाइड करने की ट्राई की गई हो. सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली विद द एग्जांपल्स ओवर हियर. अब बच्चा अगर यहाँ पे ऐसे 550 का रेफरेंस लिख के थोड़े एग्जांपल्स दे देता है, देन स्टूडेंट कैन स्कोर गुड मार्क्स. लेट अस सी व्हाट द स्टूडेंट हैज डन. लुक एट दिस. आर्म्स लेंथ प्राइस पे चला गया है. हाँ, अब देखो उसने एक, यहाँ पे बच्चे ने एक एग्जाम्पल देने की ट्राई की. क्वेश्चन में क्लियरली एग्जाम्पल पूछा था, आप आगे पूरा प्रवचन कर रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग ऑन विथ योर स्पीच एंड यू आर नॉट गिविंग एग्जाम्पल्स. एग्जामिनर को देखो, सीधा उसने एग्जाम्पल देखा, मार्क्स दे दिया. वेरी सिंपल. सो यू गिव एग्जामिनर व्हाट ही वांट्स, डोंट ट्राई टू फूल हिम. You are writing for the first time, examiner is not checking for the first time. All right, so you need to be very, very careful with that. Okay. So then the student has attempted question 2C, comment with reference to C Act 1949. All right, so disclosures fail. I'm not going into the provisions and stuff right now, but देखो student बेचारा कितना confused है यहाँ पे. पहले reference लिखा है, फिर उसको लगा बराबर नहीं है, फिर वापस वो रेफरेंस लिखा है. प्रोफेशनल एथिक्स में आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीड्स टू बी वेरी वेरी हाई. यू कैन नॉट डू दिस. प्रेजेंट केस में क्या हुआ है, एंड लुक एट दिस. नॉट गिल्टी है, उसका 1 मार्क यहाँ पे दिया है, और ये एक रेफरेंस लिखा, उसका 1 मार्क यहाँ पे दिया है. द थिंग्स हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली. गिवन केस को लेके लिंक करके थिंग्स हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली. तो आपको रेफरेंस आ गया, गिल्टी नॉट गिल्टी आ गया, बीच में कुछ आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो ठीक से, that will also not do. That is why if you see, student has not been given proper marks over here in professional ethics. अगर आप ठीक से देखो तो जो टॉपिक्स को आप अपना फेवरेट बोलते हो, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, their students are losing marks, means it clearly shows your lack of writing practice, जो नहीं होना चाहिए. So I am done with my giving comments about how students have gone by. Now quickly I will just take 3 to 5 minutes to tell you what I want to tell you, and if you want you can note this down also. Professional ethics to score marks, I'll go by professional ethics first. Professional ethics to score marks. Okay, professional ethics to score marks, your provision needs to be very clear. आपका जो गिल्टी नॉट गिल्टी पार्ट है जो एंड में आता है, दैट हैज टू बी करेक्ट. ये दोनों में से अगर आप कहीं पे रॉन्ग गए,
then it is possible that you may end up with 0. बीच का जो discussion है, जो link करना है, that also needs to be very clear. So it is my request that next time जब आप professional ethics का question bank पढ़ो, when you read the question bank of professional ethics, the moment you see the question, let us say आपको वो reference आ गया, okay, this is clause 1, so and so part and so schedule, उससे don't be too happy with that. Ensure that at least 50 to 60 आप answers पढ़ो. So once you read the answer, you will understand that from the reference till guilty, not guilty, how the answer is flowing. The biggest mistake that students commit is that after looking at the reference, और उनको जो reference आता है और जो reference दिया अगर वो right है, तो student ऐसे ही खुश हो जाते हैं, बस. Don't do that. You have to see the reference, how they are connecting it with the question, and then guilty, not guilty. तो थोड़ा बहुत reading करो उसका. मैं नहीं बोल रहा हूँ सब writing practice करो. Bare clause का writing practice करो. Bare clause का writing practice करो, come what may, and I hope that November does not come for you. So ensure that आप bare clause का writing practice करो. Company audit, overconfidence से बचो. That's the only thing that I want to say. So again, writing practice of the sections, writing practice, section मतलब पूरा section नहीं, जो main reference होता है वो. Writing practice of caro clauses, please. Writing practice of caro clauses is must. And then again linking it with the case study and giving your answers. So professional ethics, company audit, you need to be very clean. You need to be very clear. Too much of cancellations over there will show your underconfidence. All right? Okay. I'm getting chat में कि इंटर सीए के लिए भी वीडियो करो. मैं करेगा, अभी पहले बड़े लोग को तो पास होने दो यार, वो लोग जगह बनाएंगे तो आप जाओगे ना फाइनल. So you don't want to be competing with these people, right? All right. Then let me talk about standards. Standards में only right reference will not get you marks. So I've been saying this, जब आप ऐसे की पढ़ाई करो, एक काम करो, आज से लेके every day 30 minutes सिर्फ audit को दो, and daily 30 minutes sit with the most boring topics जैसे essays and other chapters. अब जब मैं essay 210 देखता हूँ, essay 210, so there is a possible question on preconditions, there is a possible question on letter of engagement, there is a possible question on management requesting the terms of changes in terms of engagement, there is a possible question on what if the financial reporting framework that is applicable to the entity is not acceptable to the auditor. इतने possible question है essay 210 में. Every essay you should look as if कितने possible question. जैसे 505 external confirmation, okay, designing the confirmation request, what are the factors to be considered over there? All right, positive negative confirmation का definition and stuff. Then you know एक दो case studies जो repeatedly आती रहती है, what if management does not allow auditor to send a confirmation request stuff, क्या बात कर. तो आप please ensure that for every essay, जैसे essay 610 internal audit, ओके तो एक क्या डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करेगा तो नहीं करेगा, डायरेक्ट असिस्टेंस में कितने क्वेश्चन पॉसिबल है, कौन से एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस यूज नहीं करना चाहिए, अच्छा डायरेक्ट असिस्टेंस यूज किया तो क्या. एवरी एसे you have to ensure that you just keep it in your mind that how many questions can be asked. There is no point again and again reading the introduction objective of that essay theory and underlining that and maintaining some summary if you are not preparing in your mind for the questions to be asked. So see your notes again, see the question bank again. Please check the markings where I have given that how the questions can be asked. Please ensure that you know the scanner you do and you are done with the amount of questions can be asked. मुझे बताओ आप स्कूल में इतना अच्छा मार्क्स क्यों स्कोर करते थे? Not because school syllabus was easy and final CA tough. When you were in school, आपको स्कूल का syllabus tough लगता था. Because आपके पास digest होता था, reliable series होती थी, जिसमें आप question bank practice करते. And by coming to final CA, you have forgotten the practice of question bank. So ensure that you continuously think about the questions that can be asked. Similarly, for part 4 other chapters, that is the biggest problem for the students. And I am trying my level best to prepare summaries for students for part 4. That is good news for you. So by March end, I think for most of the topics, you'll be having summaries on my Insta account. Some students are asking that whether PDF can be shared. आप या स्क्रीनशॉट लेके वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो. आप आर्टिकल्स हो, आपको ये सब आता है, सो डोंट वेस्ट माय टाइम ऑन दैट. ओके, सो एंश्योर दैट आप वो समरीज देखो. पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, there are many changes in May 21 module because revised statement of peer review has been given by the institute. So I'm expecting question on that for sure in peer review, quality review and stuff. All right.
So ensure that you are doing things properly for part 4. Part 4 में मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अदर चैप्टर्स जो है ना part 4, don't try to be master of all, at least try to be jack of all. I don't want you to be an expert in audit of banks or audit of insurance and stuff, but audit of banks में 12 क्वेश्चन पॉसिबल, audit of insurance में 10 to 11 क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, peer review में 6-7 क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं. Ensure that आप वैसे प्रिपरेशन करो for part 4 other chapters, because 90% of time they will ask from the past question bank only. 1 or 2 questions can be from here and there, that can be taken as your residual risk. And while attempting the paper, if there are some questions which you have not studied, and if it comes up, then please keep your common sense alive and ensure that you write as per your common sense. You have to attempt 100 marks paper. There is no other alternative to that. I lost my first final CA attempt because out of 800 marks, मैंने 120 marks का attempt ही नहीं किया था, तो बैलेंस बच गया 680 में से मेरे को आया 380 and by 20 marks I lost. Next attempt में out of 800 मैंने 832 marks का attempt कर दिया, including options in 2 papers, and I missed my rank by 8 marks. So it's not like, ऐसा तो नहीं है कि 4-5 महीने में मैं अचानक इंटेलिजेंट बन गया. So वैसे तो था ही नहीं कभी इंटेलिजेंट. So it's not that within 4-5 months all of a sudden I gained intelligence. It is just that I ensure that I attempt full paper. That is how you will ensure that you also go across all theory subjects. I had exemption including ISCA. It was just that I attempted the papers. That's it. तो आप अभी जो पेन से प्रैक्टिस करते हो, ensure that आप वही पेन से पेपर लिखो, so that आपका स्पीड भी रहे. Okay. So please do not change the pen. कोई पूजा वूजा करके नया पेन लेके मत आना. The pen with which you are practicing, and I hope some idiots are not practicing with pencil. Okay, so I'm sorry to use that word, but ensure that you write the answers with the pen that you are practicing. These many things I wanted to say. For MCQs, institute का जो material है MCQ का उतना करो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है. If your theory is strong, no one can beat you in MCQs. So now I leave this session open for if anyone wants to ask doubts, they can unmute themselves. I have kept that option open, and you can ask doubts with respect to your preparation and stuff. And I've tried to be very crisp and to the point, so you can ask doubts, whatever you want to ask over here. Hello, sir. Yes, Kashif. Yes, sir. But this is जी सर, ये अपना फिस्कल लॉस जो है ना सर, फिस्कल लॉस में तकलीफ है ना? जी जी जी. देखो, फिस्कल लॉस में 2 चीज है. एक तो है आपका डायरेक्ट टैक्स, अपना डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स ऑडिट जो आता है वो, और दूसरा जो जीएसटी ऑडिट आता है. जीएसटी ऑडिट के आपको जीएसटी से प्रोविजंस कर लेने हैं जो आपको जीएसटी सब्जेक्ट में पढ़ाए रहे. डायरेक्ट टैक्स ऑडिट में मम्मी, ये कौन है मम्मी? ओके. डायरेक्ट टैक्स ऑडिट जो है, इन दैट केस आपको जो सारे 3CD के क्लॉजेस हैं, दोस क्लॉजेस यू हैव टू रीड वंस. अगर आप देखोगे तो 3CD के जो क्लॉजेस है वो आप कब कर पाओगे? जब आपका डीटी का पोर्शन हो गया. एंड आई थिंक बाय नाउ इफ यू आर May 21 स्टूडेंट, तो आपका डीटी का पोर्शन हो गया हो. So you have to read 3CD clauses only after your DT portion is over. Conceptual understanding के मार्क्स है. अगर आपको क्लॉज नंबर नहीं आता है, in that case it is fine for theory answers. हाँ, MCQ के केस में 99% ऑफ टाइम वो लोग क्लॉज नंबर नहीं पूछते. बट मेरे पास 1-2 स्टूडेंट ऐसे आए थे जिन्होंने बोला कि आई थिंक बिकॉज MCQ वो लोग पब्लिकली पब्लिश नहीं करते, so I think in the recent attempt in 1 or 2 question clause number was asked of form 3CD, correct? So I realized now that they are doing it, and by March end clause numbers कैसे याद रखने हैं उसका आपके पास एक समरी नोट्स मेरी तरफ से आ जाएगा ऑन माय इंस्टा अकाउंट. डोंट वरी अबाउट इट. मैंने स्टूडेंट का वो कंप्लेंट नोट कर लिया है दैट 3CD में दे हैव आस्क्ड क्लॉज नंबर्स, व्हाट टू डू अबाउट इट. So I'm working on it. By March end you will have सारे other chapters की summary notes you will have. Don't. Anything else? सर कौन है? कुशल. यस. हाँ सर, एक आपने जो बोला ना, तो जैसा आपने बोला मुझे समझ में आ जाता है. और आपने जैसा बोला ना मैंने एसएस वैसे ही किया, सब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही किया. तो मैं कोई भी ऐसे है ना तो उसको 3-4 क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख दिया और फिर वही सिर्फ रिवाइज करता हूँ और पॉइंट्स रिमेम्बर करने की कोशिश करता हूँ. हाँ, पर सर कितनी बार क्या होता है, रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है. तो जो आपने बोला कि हर रोज आधा घंटा करना है,
तो उसमें वो रिटेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 15 और फिर मिनट सर बाद पढ़ में सकते हो ना, तो आपका रिटेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लस मैं जितना हो सके उतने ऐसे की समरी नोट्स अपने इंस्टा अकाउंट में भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक वो रिटेंशन का प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो सकता है आपका। और बाकी आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, फॉर एनीवन हु हैज रिटेंशन प्रॉब्लम, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी आएंगे। सो आप एक काम करो, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, which you know how many questions are possible from each essay, at least by heart 2 points which are same like suggested answer. Balance answer you can write on your own. आपने अभी देखा जो मैंने पेपर्स दिखाए, जैसे ही एग्जामिनर को थोड़ा सा भी रेफरेंस मिल रहा था सजेस्टेड आंसर का, he was giving a tick mark 1 mark, tick mark 1 mark. So if couple of points are equal to suggested answer and if balance answer you write on your own, in that case 5 में से 2.5 3 आपका इंश्योर हो जाता है। देखो जिनको रैंक स्कोर करना उनको तो सारे पॉइंट्स बाइट करने, बट एटलीस्ट टू एंश्योर कि 50-60% ऑफ मार्क्स तो आपके पास आए, फॉर दैट यू हैव टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ द सजेस्टेड आंसर आप बायट करो, मॉड्यूल लैंग्वेज में दिखना चाहिए, बैलेंस आंसर यू राइट ऑन योर ओन। आप ऐसे वर्कलोड कम कर सकते हो, सो एंड आप ऐसे अपना रिटेंशन भी इंप्रूव कर सकते हो। बच्चे पे लोड कब बढ़ जाता है, व्हेन दे ट्राई टू बायट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द आंसर, सो डोंट डू दैट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट इज हाउ यू कैन प्लान योर जर्नी। ओके कुशल? यस सर। एंड सर एक और चीज लास्ट पूछना था सिर्फ कि सर मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं करूंगा तो चलेगा? जेकेएससी प्लस आपके नोट्स इनफ है? टैक्समैन पब्लिकेशन का स्कैनर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट शुड डू इट, व्हिच इज बाय आई थिंक पंकज गर्ग सर। तो वो टैक्समैन पब्लिकेशन का स्कैनर, देखो मैं आई रिस्पेक्ट माय कॉम्पिटिटर्स आल्सो इफ दे आर डूइंग गुड जॉब, तो टैक्समैन पब्लिकेशन का स्कैनर यू शुड डू इट। वो करने के बाद में आप एक बार मॉड्यूल क्वेश्चंस को देख लो, आपका ऑलरेडी सब मॉड्यूल क्वेश्चंस कवर हो जाएगा उसमें। तो जेकेएससी में जो आपने किया है वो जो क्लासरूम टेक्स्ट बुक प्लस टैक्समैन पब्लिकेशन स्कैनर, इतना तो मस्ट है। एंड देन मॉड्यूल क्वेश्चंस का आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एक बार रिव्यू करो। मैं पूरा मॉड्यूल पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट मॉड्यूल क्वेश्चंस का रिव्यू करो। That is what I'm expecting you to do it. Sir. Anyone else? Yes, sir. Who is this? Krishna. हाँ बोलो बोलो। सर लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर चैप्टर है, वो मतलब समझ नहीं आ रहा वो कैसे पढ़ना है। Are you a JKSC student? या आपके पास वो वीडियो एक्सेस है जो आपको दिया है? यस यस यस। उसमें तो बेटा लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का टॉपिक अपलोड किया है। और उसमें सर आपने अभी ये बोला कि ज्यादा उसे फोकस मत करना, जो मैं क्लास में बता रहा हूँ उतना बस एक बार देख लो। हाँ एग्जैक्टली बिकॉज लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में ना आपको बोल देता हूँ कितने फिक्स क्वेश्चन होते हैं। एक तो मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस वाला क्वेश्चन आता है, फिर दूसरा टैक्सेशन लॉस की जो लायबिलिटीज है उसका क्वेश्चन आता है। टैक्सेशन लॉ में ऑडिटर के ऊपर क्या लायबिलिटी होता है, विच यू स्टडी अंडर टैक्सेशन सब्जेक्ट, जो पेनल्टीज के क्लॉजेस है। एंड थर्ड, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में स्टार्टिंग में कुछ थियरी है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड in that topic. That much only you are supposed to do and do the module questions of that. That is more than enough. Okay. Anyone else? सर नवंबर अटेम्प्ट था तो उसका दिया नहीं, सेकंड ग्रुप दिया था सिर्फ। तो अभी मई में मुझे अगर अमेंडमेंट्स और सब देखना रहेगा तो उसके लिए कहाँ पे प्रॉपर? May 21 की मॉड्यूल डाउनलोड कर लो सर क्योंकि मैंने सुनो एक मिनट सुनो। May 21 की मॉड्यूल डाउनलोड कर लो और वो मॉड्यूल में ना जहां पे भी बोल्ड में सब लिखा है, whatever is written in dark bold, those are the changes from November 20. तो आपको वैसे लिस्ट मिल जाएगा कि क्या क्या नया आया है। मेजर चेंजेस आर इन प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, इतने टॉपिक्स में मेजर चेंजेस है। ओके। और सर अभी ये कोविड वगैरह पे जो केसेस हैं, अगर वैसा कुछ आ सकता है क्या, मतलब पॉसिबिलिटीज है क्या करके? तो बोला नहीं है कि आएगा। ओके। बट कोविड इम्पैक्ट ऑफिशियली तो बोला नहीं है कि आएगा, बट हम जो स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली कोविड सिचुएशन, आई मीन जो भी हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अगर ये हुआ तो वो एनीवेज कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे 501 है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें वो आ ही जाता है एक पॉसिबिलिटी दैट व्हाट इफ फिजिकल वेरिफिकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल, वो पॉइंट है ही उसके अंदर। तो उसके अंदर एनीवेज वो कोविड सिचुएशन भी आ गया। सो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू स्टडी सेपरेटली फॉर दैट, करेक्ट। पर कोविड इम्पैक्ट के जो सर्कुलर्स इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए थे उनकी वेबसाइट पे
Officially, they have not said that it will be made applicable over here. If there is any such announcement from their side, then of course, I'll come out with something on the social media accounts. Thank you. Anyone else? सर क्वेरी था. हेलो. हाँ, yes, बोलो. वो प्रेजेंटेशन के रिलेटेड था. इन केस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जब भी उसका क्वेश्चन आता है पेपर में, तो वो केस से रिलेट करने का कि फिर डायरेक्ट पॉइंट पे आने का, एज इन द केस गिवन केस और एनालिसिस लिखने का, कि फिर डायरेक्ट जो पॉइंट है उसका स्टैंडर्ड्स का जो आंसर है. आपको रेफरेंस से स्टार्ट करना है और फिर डायरेक्ट आंसर पे आ जाना है. हाँ, लेकिन अगर सब जो ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चंस है, लाइक आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, या सब्सिक्वेंट इवेंट्स में ऐसे 560 के भी केस स्टडी है, नवंबर 18 पेपर में थी पहले केस स्टडी. तो वहां पे जहाँ पे केस स्टडी के ऊपर ही आपको कंक्लूजन देना है, देयर यू हैव टू राइट द फर्स्ट द रेफरेंस, देन केस स्टडी एंड देन यू राइट ऑल दिस, क्या अपना कंक्लूजन है. पर अगर आप यहाँ पे देखोगे नवंबर 20 में सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्वेश्चन था, लेकिन केस स्टडी था ही नहीं. वो भले बोलने के लिए केस था, बट एट द एंड उन्होंने पूछ लिया थियरी क्वेश्चन. ओके. देयर द होल केस स्टडी वाज नॉट रिक्वायर्ड. वैसे ही अगर आप नवंबर 18 देखोगे, नवंबर 18 न्यू सिलेबस, उसमें भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है, बट उसमें केस स्टडी आपको लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, ऐसा आंसर में. ओके. You have to see if it is a theory question, then there is no need to write the whole facts of the case and everything in the answer sheet. But आपको केस स्टडी के ऊपर ही कंक्लूजन देना है. In that case, you will have to write. 90% of time एसएस में थियरी क्वेश्चन ही होता है, भले कितना भी बड़ा केस स्टडी हो. ओके. क्योंकि मैंने ना ये नवंबर 20 का पेपर दिया था ना, तो उसमें आई लिंक द क्वेश्चन विद द गिवन केस स्टडी. तो उन्होंने आगे का पढ़ने का सोचा ही नहीं. मतलब इन केस दे थॉट कि ये गिवन केस स्टडी लिख रहा है, मतलब लेंथ उन लोग को बढ़ाना है स्टूडेंट को, तो उन्होंने आगे का पढ़ा ही नहीं. मतलब वो थोड़े सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाले क्वेश्चन में, हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट वाले में नहीं था, वहां पे रिक्वायर्ड नहीं था, वो थियरी आंसर. अच्छा. ओके. आपका बैलेंस आंसर लेकिन मैच हो रहा था सजेशन आंसर से. मतलब जो मैंने भी वो रीड मिनट्स और वो जो पॉइंट्स जो था ना रेजिडेंट, आगे उन्होंने रीड ही नहीं किया होगा. रीड ही नहीं किया उन्होंने. उनको लगा कि लेंथ लंबा करने के लिए उन्होंने if it is a theory answer, there is no need of writing the whole case study. ओके सर, थैंक यू. Anyone else? Hello, sir. इधर से आ रहा है. Sir Prasad here. हाँ, Sir, बोलो. can you come up with a summary notes of fiscal loss? मैंने बोल दिया already. I am coming out with that. Okay, sir. Thank you. Already said 5-7 minutes back. Okay, sir. Thank you. Yeah. Anyone else? हेलो सर. हाँ. हेलो. हाँ, जानवी. Yes. आपका आवाज नहीं आ रहा है जानवी. सर ये कौन है? DS. अच्छा, DS. हाँ, बोलो DS. ओके. Sir, you said that we should refer to ICI MCQ, but sir, in last 2 attempts, I marked that from ICI MCQ, hardly some questions are asked. ICI MCQ ना बेटा आपको इंडिकेटिव प्रैक्टिस दे सकते हैं. At the end of the day, आप whatever theory you are preparing, you need to be strong on that. So वो मैंने पूरे पेपर में बोला है that MCQ के लिए you cannot prepare separately. Your theory should be good to answer MCQs. Correct. Okay. So that thing, those things are always going to be there. अब आपने कुछ स्टैंडर्ड्स ही ऑप्शन में छोड़े रहेंगे, या कुछ जैसे पीयर, मैंने काफी स्टूडेंट ने मुझे बोला दे हैव लेफ्ट पीयर रिव्यू इन ऑप्शन. अभी क्या बताऊं मैं? If giving such topics in option, तो उसमें तो फिर then there is a problem. अगर आपने ऐसा फील किया कि आपने ऑप्शन में नहीं रखा था, still you are not able to solve, then you let me know. कहीं ना कहीं we need to be honest over here that we leave around 5-6 topics in option. So that creates a problem. Okay. And sir, you are sharing these notes on Insta. Sir, can you share it on Telegram? मेरा बेटा अभी टेलीग्राम चैनल वगैरह ओपन नहीं किया. मेरे पास ऐसा कोई सोशल मीडिया हैंडलर नहीं है. Okay. Actually, sir, I am actually, sir, many faculties and all says that you should not go through Insta, and so I have deleted my account. I'm not used to this. आप मेरे अकाउंट में आप नोटिफिकेशन अलर्ट डाल दो, तो आपको सिर्फ मेरा अकाउंट ही दिखेगा. Don't worry. Okay. Yes. Anyone else? Because once we start, no sir, it's just like we go through other, and it takes lot of time.
ठीक है मैम, मैं सोचूंगा अभी टेलीग्राम का। ठीक है, ओके। ओके सर, आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस थे वो आप फिर से मतलब रिवीजन टाइप का कुछ सब आएगा, ऐड सब कर आएगा, रहे हैं? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आ जाएगा बहुत कुछ। ओके, लाइक होल सिलेबस और मींस लास्ट टाइम यू डिड? I'm still working on it, so अभी मैं क्या होता है कुछ कमिट कर दूं on record and if it does not come out then it does not look good, no? So I'm working, ओके ठीक है? ओके, थैंक यू सर। सर हेलो। Yes, हेलो on काशिफ। जी सर। सर और एक चीज थी कि एमसीक्यूज में अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो स्मार्ट गेस कुछ कर सकते क्या सर? मतलब एमसीक्यूज में मार्क्स चल रहे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ही टिक कर सकते हो ऐसा? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा, मगर दो ऑप्शन से वो दो भी अपने को सेम दिख रहे, तो वैसे केस में कैसा करना है? मतलब मेरे आप एक काम करो काशिफ, एक काम करो, आप मुझे ना मैसेंजर, इंस्टा मैसेंजर पे एक वो पिक निकाल के भेजो कि आपको ऐसा कुछ तकलीफ हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा 1-on-1 डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। जी सर, शुक्रिया। मतलब आप जो बोल रहे हो ना उसके लिए एक इलस्ट्रेटिव केस स्टडी लगेगा। जी सर। सर आई हैव डाउट। यस जानवी। सर अभी मैंने नवंबर 20 दिया था अटेम्प्ट एंड मेरे को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 1.5 डे में वो कंप्लीट कैसे करना है। मतलब मैंने तो ऐसे प्रिपरेशन आर वाइज किया था कि ये सब्जेक्ट मतलब ये टॉपिक को इतना टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर दिस जूम सेशन ना, हाँ मैं वो फाइनल से का 1.5 डे वाला प्लान रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा हुआ है ये। ओके आई एम रिलीजिंग इट, सो आप डोंट वरी, यू विल गेट इट। एंड सर और एक डाउट है कि मेरे को क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। वही रीजन है कि मतलब अभी जैसे ये सीए जास का एक क्वेश्चन था तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, राइट? बट मैंने जब अभी अटेम्प्ट किया तो ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू में लिख दिया। तो मैडम एंजाइटी इज द प्रॉब्लम, वरना लैंग्वेज बहुत क्लियर था कि मैनेजमेंट के एंगल से। हाँ तो आपको पहले तो खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि अगर आप फाइनल सीट तक पहुंच चुके हो तो आगे भी आप पहुंच जाओगे। डोंट वरी अबाउट इट। सो आप यू हैव थोड़ा अलर्ट रह के एवरी क्वेश्चन आपको अनबायस्ड तरीके से देखना है। जैसे कि आपने देखा नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तो ऐसा नहीं कि चलो ऐसे 250 फटाफट लिख दो आप खत्म कर दो, डोंट डू दैट। अभी कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं अकाउंट्स का पेपर लिखते हैं ना एफआर का, तो संगीता लिमिटेड आता है और उन्होंने टेक्स्ट बुक क्लास के टेक्स्ट बुक में संगीता लिमिटेड किया होता है, तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि वही क्वेश्चन है। तो यू हैव टू पूरा क्लीन स्लेट ऑफ पेपर माइंड से आपको क्वेश्चन देखना है। ओके सर, ओके थैंक यू। एनीवन एल्स? Sir, Ronak here. May I? Yes, Ronak. Yeah, sir, actually I had called for my certified copies and sir मेरे को MCQs में ना हर बार 20 and above मिलता है, मतलब 20 से 25, पर मेरा टोटल 50 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। And sir, even like essays and professional ethics. full session अभी तो लिया मैंने। Yes sir. उसमें मैंने काफी सारी मिस्टेक्स बताई। आर यू एबल टू रिलेट टू दैट? मतलब मैं खुद से खुद का ऑडिट कैसे कर? आप एक काम करो, आप अपना सर्टिफाइड कॉपी मुझे भेजो। Okay. And then let us work out what has happened in your case, because as far as I know you, Ronak, yeah, even I want to know why your score sheet is not going above 50, because I know that you are a bright student. So share it with me and we will go through it. Sure sir. Yes, thank you. Hello. Yes Sir, can you keep this video on YouTube? I had missed. I just record joined. हो रहा है मैडम, रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो Okay, so it will be available on YouTube? yes, आपकी आवाज के साथ आएगा। Okay, thank you. Yes. Anyone else? Okay, एक बार वीडियो तो ऑन कर दो सब, मैं बाई तो बोल दूं अच्छे से। अरे हम इंटर वाले हैं। इंटर वाले क्या कर रहे हो ऐसे मस्ती में? हाँ। It's okay. So thank you everyone. I think we are now at the end of the session. So ensure that you give your best and whatever happens, थोड़ा relax करो। 2020 has already been very tough on all of us. तो आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, उतना ही बहुत है। तो अगर कुछ आगे पीछे होता है अटेम्प्ट में, do not worry about it. Stay in touch with me. I will try my level best to solve your queries. Thousands of students are thousands of queries are coming to me from hundreds of students. So अगर थोड़ा delay हो जाए reply में, then you can keep on reminding me. All right. So ensure that you do your best and all the very best. All the very best. So, Thank you sir. Thank you so much, sir. Thank you for the session. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.